The next chapter is carbon and its compounds. तो organic chemistry the chapter है, and in this chapter we will discuss the very important topic IUPAC nomenclature. IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. So this International Union of Pure and Applied Chemistry sets some rule to write the name of each and every organic compound. So this is the very important part of organic chemistry, and we must know how to write the IUPAC name of each and every compound to understand the further concepts in the organic chemistry. So we will start with the IUPAC nomenclature. So what is the meaning of organic chemistry? Organic chemistry means the chemistry of carbon, basically. Organic chemistry is the study of organic compounds, और organic compounds के अंदर जो main element होता है वो है carbon. Carbon form large number of organic compounds. Till date about 53 lakh organic compounds are known. Why carbon form large number of organic compounds? Because of its special property that is called catenation. Catenation means self-linking property. So this is the special property of carbon which make it able to form a large number of organic compounds. So what is catenation? Catenation is self-linking property. Self-linking means carbon-carbon single bond is a very strong bond. So it can form a long chain up to 60, 70, 80 carbons. So because of this special property, it forms large number of compounds. So when the carbon atom they link with one another, it form a chain like this, that may be straight, that may be branched. So this property of carbon that may be, you can say, cyclic. So carbon, 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 that may be a straight chain, long chain. Carbon, 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 that may be a branch chain like this, and it may be a cyclic. So it forms large number of compounds which are straight chain or which are cyclic also. So second thing is the electronic configuration of carbon is, what is the atomic number of carbon? First is 6. So its electronic configuration is 2, 4. K सब शेल में K shells 2 इलेक्ट्रॉन and L shell में 4 इलेक्ट्रॉन. So its valency is 4. What is the valency of carbon? That is 4. It means in all the organic compounds, carbon form 4 bonds. Not less than 4, not more than 4. So we must fulfill this condition, like every carbon in the organic compound that form 4 bonds. Like in this case also, it form a 4 bonds like this. So carbon generally form covalent. So these organic compounds, they are covalent in nature. So let's start nomenclature and learn the rules to write the IUPAC name of organic compound. Name of any organic compound, that is, you can say IUPAC name, is divided into 3 parts. Prefix, suffix and word root.
prefix, suffix and word root. Word root is the main part of organic compound. Prefix जो उससे पहले आएगा, suffix जो उसके बाद आएगा. So first of all discuss about the word root. C1. If the carbon contains one carbon, the organic compound contain only one carbon, so we use a word meth. This is a word root for one carbon, C1. If we have a two carbon like this, C single bond C, then we use a word eth. So C3 we use a word prop. C4 we use a word but. C5 के लिए pent. C6 के लिए hex. C7 के लिए hept. C8 के लिए oct. C9 के लिए non और C10 के लिए deck. तो ये आपको पता होना चाहिए वर्ड रूट आपका क्या है. जितने भी कंपाउंड के अंदर कार्बन होंगे स्केलेटन के अंदर, अगर 4 कार्बन है स्केलेटन में कंपाउंड के अंदर तो ब्यूट वर्ड रूट आएगा. प्रीफिक्स होता है जो पहले आता है वर्ड रूट से. प्रीफिक्स दो टाइप का है. एक को बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स. Primary prefix means that will only give information whether the compound is cyclic or acyclic. Acyclic means straight chain. अगर तो कंपाउंड साइक्लिक है, जैसे अभी ड्रॉ किया था कि कार्बन जो है कार्बन 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 बॉन्ड बना के ऐसे एक साइकिल फॉर्म बना रहा है, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड कोई भी, तो भी तो हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो. प्रीफिक्स क्या आ जाएगा? साइक्लो. अगर उसके अंदर चेन है साइकिल नहीं है तो प्रीफिक्स यूज ही नहीं होगा. तो प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द साइक्लिक और एसाइक्लिक. इफ द कंपाउंड इज साइक्लिक वी विल यूज द वर्ड साइक्लो. इफ द कंपाउंड इज स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन देन वी विल नॉट यूज द वर्ड साइक्लो. Secondary prefix that give information about the substituents. Substituent का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है उसमें आपने एक चेन सिलेक्ट कर ली स्केलेटन वर्ड रूट, चेन को छोड़ के जो भी बचेगा वो उसका सब्स्टिट्यूएंट होगा. जैसे मान लो ये कंपाउंड है, तो ये आपकी चेन होगी. इसमें 5 कार्बन, या आगे रूल्स में भी पढ़ेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. अब चेन के अंदर 5 कार्बन आएंगे 1 2 3 कंटिन्यूशन में 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं जाना 1 2 3 4 5 6 में, बिकॉज देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन दीज 2 कार्बन. सो 5 कार्बन तो चेन में आ गए, ये कार्बन नहीं आया बीच में, तो इसी को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं. विच इज अटैच्ड टू द मेन चेन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट मेनली कंपाउंड्स के अंदर 2 टाइप के होते हैं. एक आपको मिलेगा CH3, एक आपको मिलेगा C2H5, या इसी को ही ऐसे भी लिखा हो सकता है CH2 CH3, एक ही है ये. तो अगर तो ये सब्स्टिट्यूएंट मिलता है जिसमें एक कार्बन है, तभी तो एक कार्बन का मैथ हमें पहले कर लिया, और हर सब्स्टिट्यूएंट के साथ पीछे YL लगना है. सब्स्टिट्यूएंट के एंड में क्या लगता है? YL. अगर मेथ है तो मिथाइल, इसको मिथाइल बोलेंगे. अगर 2 कार्बन वाला आ जाए, 2 कार्बन हमें पता है एथ है, तो इसका एथ लिख के साथ में क्या लिख देंगे? YL, तो ये इथाइल हो जाएगा. फिलहाल ये 2 आपको सब्स्टिट्यूएंट ध्यान में रखने हैं, बाकी जैसे जैसे आएंगे पता चलता जाएगा. तो ये प्रीफिक्स 2 टाइप का हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ये भी जरूरी नहीं है कि कंपाउंड के अंदर सब चीज यूज हो, प्रीफिक्स भी हो सुफिक्स भी हो, ऐसा नहीं है. कई बार होता है कंपाउंड के अंदर प्रीफिक्स होता ही नहीं है, सीधा उसका जो नेम है वो वर्ड रूट से ही शुरू होता है. तो कई बार होता है कि प्राइमरी प्रीफिक्स भी होता है सेकेंडरी भी होता है, तो कई बार होता है प्राइमरी नहीं होता सेकेंडरी होता है. तो इट डिपेंड्स. ऐसे जो सुफिक्स है वो भी 2 टाइप का है.
एक तो है प्राइमरी सुफिक्स, दूसरा है सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स मींस, अब इसमें हम देखेंगे कि कंपाउंड वो है उस, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, वो मैंने ऊपर कंपाउंड बना दिया, तो सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हैं। एक तो ये कैटेगरी हो गई। अभी अगर मैं स्टेट चेन बनाता हूं, ठीक है, तो मान लो मैं ऐसे बना दिए। अब इसके अंदर सभी कार्बन जो हैं वो आपके सिंगल बॉन्ड है। अब ये दूसरा है, इसके अंदर आप देखो कि एक कार्बन कार्बन बॉन्ड जो डबल भी है। ऐसे ही कार्बन कार्बन बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकता है। कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन टोटल बॉन्ड उसके 4 ही रहेंगे। आप यहां से भी काउंट करो, इस कार्बन के टोटल बॉन्ड 4 ही हैं, 2 इधर, एक ऊपर, एक इधर। ट्रिपल भी हो सकता है ऐसे। अब देखो इसके टोटल बॉन्ड 4 ही रहेंगे। तो जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तब मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। ये जितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं जिसके आगे कुछ नहीं लिखा, ये सब हाइड्रोजन है। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन किसमें आएंगे? जब सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है। जब कहीं डबल आ गया बॉन्ड तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है कम हो जाएंगे, ट्रिपल आ जाएगा तो और कम हो जाएंगे। अगर हम 4 को ही कंपेयर करें, सपोज इसके 4 ले लें, तीनों में 4-4 कार्बन है, तो फर्स्ट में देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, तो हाइड्रोजन कितने अटैच है? 10, 4 ऊपर 4 नीचे, लेफ्ट एक राइट। अब सेकंड में आ जाओ, एक बॉन्ड डबल कर दिया, अब हाइड्रोजन की पोजीशन कितनी रह गई? 4 ऊपर 2 नीचे, एक लेफ्ट एक राइट, तो टोटल 8 रह गई, 2 कम हो गई। एक डबल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन कम हो गए। अगर ट्रिपल आ जाता है तब इसमें कितनी पोजीशन है? एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ऐसे ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन काउंट करो, इसमें टोटल कितने आए? 6 आए। इसमें टोटल हाइड्रोजन है 10, इसमें टोटल हाइड्रोजन है 8, इसमें है 6। तो हाइड्रोजन मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला है जिसमें कार्बन कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मीन्स नो मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड, मैक्सिमम। उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्राइड ऑफ कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। अब जो नीचे वाले हैं 8 और 6 वाला, 8 में भी हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 4 कार्बन की? 10। तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन उसमें ऐड कर सकते हैं। नीचे वाले में हम 4 और ऐड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है जिसमें हम ऐड कर सकते हैं उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इस चीज को, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को कौन रिप्रेजेंट करेगा? प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर सब बॉन्ड सिंगल है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा एन, ANE। जैसे फर्स्ट है उसमें वर्ड को क्या यूज होगा? एन, सुफिक्स में। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, एक ही आ जाए चाहे, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा इन, सेकेंड वाला। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसके लिए वर्ड यूज होगा आइन, YNE को आइन बोलते हैं, आइन। ओके, ये 3 वर्ड है जो ये प्राइमरी सुफिक्स के अंदर आते हैं। आपने देखना है अगर कंपाउंड के अंदर जो चेन आपने चूज किया उसके अंदर सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल है, तो एन आएगा एंड में। जैसे वर्ड रूट कोई भी, जैसे इसमें 4 कार्बन है, 4 का वर्ड रूट ब्यूट आ जाएगा, ब्यूट के साथ एन, ब्यूटेन, उसका नाम बन जाएगा ब्यूटेन। दूसरे वाला 4 ही कार्बन है लेकिन एक डबल बॉन्ड आ गया, तो उसका बन जाएगा ब्यूटीन, BUTENE, ब्यूटीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, 4 कार्बन है, 4 का ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड का आइन, तो बोलेंगे ब्यूटाइन, BUTYNE। बस इतना ही काम है। आगे फर्दर हम करेंगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कोई भी हो सकती है, उसको भी मेंशन करना है, वो हम रूल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो यहां सिर्फ यही सीखना है कि प्राइमरी सुफिक्स का मतलब है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को बताना। डबल बॉन्ड आपका या ट्रिपल बॉन्ड वो एक साथ भी आ सकते हैं कंपाउंड के अंदर, तब इन भी यूज होगा, आइन भी यूज होगा।
दोनों यूज करेंगे। लेकिन जब डबल बॉन्ड, अब इस कंपाउंड के अंदर देखें आप, डबल भी है सिंगल भी है, लेकिन अब जब डबल आ गया जब ट्रिपल आ गया तो एन नहीं यूज होना, एन को छोड़ देना। एन वर्ड्स तभी आएगा व्हेन ऑल दी बॉन्ड्स आर सिंगल। ओके, उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स में आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये आपने सुना होगा। तो फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये कुछ और भी हैं, काफी फंक्शनल ग्रुप हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सीखेंगे सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखना है। तो रूल्स फॉर राइटिंग दी नेम। रूल्स फॉर saturated hydrocarbons. First rule is very important. Select longest chain. You can say select longest possible chain. Why possible? The chain may be straight. Straight हो सकती है, may be branched, और may be cyclic, but it should be continuous. कंटिन्यूस होनी चाहिए। जैसे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं कार्बन कार्बन का, जैसे सी 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 सी, ये। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा इनको ऐसे, इसके 3, इसके 2 और। हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो बॉन्ड भी 4 ही होने चाहिए। इस कंपाउंड को और किस मेथड से लिख सकते हैं, इसी को ही, जैसे मान लो ये कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, मैं इसको नंबरिंग 1 नंबर देता हूँ, नंबर बाद में लिखेंगे। तो दिस कार्बन हैज 3 हाइड्रोजन, तो इस पार्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3। किससे ऐड है, इस C से, इसके साथ है 2 हाइड्रोजन CH2। उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड C, ये वाला C, इसके पास एक H है, और लेकिन इसके नीचे क्या लगा हुआ है, हम CH3, सामने CH2 और आगे CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसकी एक बॉन्ड लाइन नोटेशन भी होती है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये भी एक ही बात है। कैसे, अब देखो ये वाली कार्बन है फर्स्ट, यहां जहां पे लाइन बेंड हो जाती है, जहां खत्म हो जाती है, वो कार्बन है, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन इनविजिबल होते हैं। ओके, तो ये जो डॉट्स हैं ये सब कार्बन है। कितने कार्बन है टोटल, 6 इसमें 6 उसमें। अब इसको कंपेयर करो, एक ही बात है, बस उसमें कार्बन और हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहे। तो कंपाउंड किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट काम क्या है, टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन में इसमें देखें, लॉन्गेस्ट चेन आपकी इधर से या इधर से या यहां से शुरू कर सकते हैं हम। तो जैसे यहां से काउंट किया 1 2 3 4 5, यहां से काउंट किया 1 2 3 4, ये तो छोटी हो गई। 1 2 3 4, ये भी छोटी हो गई।
ऐसे आप कर नहीं सकते 1 2 3 4 5 6 बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड नहीं है। चेन शुड बी मे बी स्ट्रेट ब्रांच्ड और साइक्लिक बट इट शुड बी कंटिन्यूअस। जहां पे बॉन्ड नहीं है वहां से आप नहीं जा सकते। ऐसे नहीं कर सकते आप 1 2 3 4 5 6 नो, इट्स रॉन्ग। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की जो चेन बन रही है जो कंटिन्यूअस है वो है 5 की ये चेन। अब जो चेन में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है चेन में, इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। और इस चेन को बोलते हैं हम पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का ही हम लिखते हैं वर्ड रूट। इसीलिए पेरेंट चेन सिलेक्शन जो है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर राइटिंग द आयुर्वेद नेम। ठीक है, इसमें भी जैसे ये है 1 2 3 4 5 तो ये आपकी चेन हो गई, ये बच गया सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट एग्जांपल, किसी भी फॉर्म में कंपाउंड दिया हो आपको लिखना आना चाहिए, दिखना आना चाहिए कि कौन सी चेन जो है वो आपकी लॉन्गेस्ट होगी। ये हो गया। इसमें यहां से करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 छोटी है 1 2 3 4 5 6 यहां 1 2 3 4 5 ये भी छोटी है 1 2 3 4 5 6 इस साइड भी 6 इस साइड भी 6 वो एक ही बात है। तो बोलो ये आपकी होगी लॉन्गेस्ट चेन। तो अब लॉन्गेस्ट चेन के बाद दो ग्रुप बच गए, ये और ये, इनको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें थोड़ी सी भी जल्दी करोगे तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी 4 कार्बन की, लेकिन इसको जो C2H5 है कॉम्प्लेक्स, इसको पहले खोलोगे, नीचे जो ग्रुप नजर आ रहा है C2H5 उसको ओपन करके बाद में आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे C2H5 को आप कैसे खोलोगे? C2 यहां पे ऐसे C2 लगा दो, H5 5 मीन्स 3 तो इसके साथ अटैच होंगे, इधर इधर और इधर, मैं सीधा CH3 लिख देता हूं, और 2 इसके साथ होंगे। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि इसके 3 इसके 2 तो ये गलत। क्यों गलत? क्योंकि इस कार्बन के बॉन्ड अब हो गए 5, इसके रह गए 3, दोनों ही गलत। कार्बन के बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम। तो CH2 CH3। अब चूज करेंगे चेन। अब इसमें है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, अब 5 हो गई। देखो उसमें क्या था? 4।